यस जॉन सर, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। जो लोग नहीं पहुंच पाए हम लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो भेज देंगे। Fine, so we'll start. Yes, sir. What we will do is we will start our meeting. Yes sir. So do you want me to make you admin? No, it's fine. Absolutely fine. I have shared the topics on the screen. Okay. Not a problem. Yes. Good evening, all of you. Kem cha bada? Majama? Everybody. Am I audible? Somebody said, sir, you're not audible. Fine. So, see, the reason why we have gathered here is because Akshay sir has organized a group discussion, and I think uh, he is somebody who is a pioneer in uh, taking care of students when it comes to English language, especially English communication. And his enterprise, Ehsaas Academy and Elite Spoken English, is doing a wonderful job. હું હમણાં ભુજમાં જ હતો 2-3 દિવસ પહેલા ભુજમાં હતો, and I did get a chance to meet Akshay sir, and I was really happy to see his progress. Fine. So આપણે હવે group discussion ની વાત કરી રહી છે, and I think the event is on 2nd of October, right? Yes sir. Yes. Now can I have a hand raise and see how many of you have participated in a group discussion? Mind you, this group discussion is not what we see on the news television debates. Okay, those things are not group discussions. Those are just irrelevant fightings. Okay, what is a group discussion and what is the importance of group discussion? Why do you need to have a group discussion? That's the most important part you need to understand. Because when you are डीलिंग विद समबडी, जब हम किसी से डील करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं, बट अगर आप प्रोफेशनल डिग्रीज देखोगे तो प्रोफेशनल हर Yes sir. Yes sir. या सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड in dealing with uh, anybody at any level is communication skills. If you do not have communication skills, it becomes really and nearly impossible to crack a deal. आप किसी भी लेवल के आदमी से बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड इसीलिए आप कोई भी प्रोफेशनल डिग्री देखोगे उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वे ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज अ पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट अगर आप किसी एक गरीब आदमी को अगर आप कुछ पैसे देते हो तो आप उससे कम्युनिकेट करते हो, वो भी आपसे कम्युनिकेट करता है कि भाई मैंने इतने दिनों से खाना नहीं खाया है तो मुझे कुछ पैसे दे दो या मुझे कुछ खाना दे दो। डू यू अंडरस्टैंड? दैट लेवल also needs a level of a stage of communication. At the same time, you need to realize कि अगर मैं एक मैनेजर लेवल पे हूँ तो भी मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है। इसलिए आज सारे प्रोफेशनल स्किल्स में, प्रोफेशनल डिग्रीज में, प्रोफेशनल स्किल्स में भी communication is the most important part. And whenever you sit for any entrance exam, not only the written part is there, there will always be a GDPI. GDPI is group discussion and personal interview. Now, what is exactly a group discussion? Why do you need to have a group discussion? Now, the group discussion is somewhere you put in your views in such a manner that you respect the space of the person who is having a different opinion. You respect the person's space, you respect the person's views, but at the same time, you make sure that your points are properly heard. समझ में आया? कहने का मतलब है कि जब आप एक ग्रुप डिस्कशन में होते हो, ग्रुप डिस्कशन इसलिए किया जाता है कि आपके जो विचार है
आप जो सोच रहे हो वो चीज दैट हैज टू बी placed in the minds of the people who are opposite to you. At the same time, people should understand what you want to say. At the same time, you keep up the respect why here. Now, when you see, I have the topics with me, and I'll tell you, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे सबसे ज्यादा आपको ये समझना है कि हमको जो टॉपिक मिलता है, देखो ग्रुप डिस्कशन में कोई जीतता या कोई हारता नहीं है। ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक मिलता है, उस पर हम चर्चा करते हैं, उस पर हम डिस्कशन करते हैं, उस पर हमारे जो व्यूज है वो किस तरह से हम दूसरों को समझा सकते हैं, किसी पे भी हमको थोपना नहीं है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबको क्या लगता है ग्रुप डिस्कशन में हम लोगों को जीत जाना है, हमारे पॉइंट सबसे स्ट्रांग होने चाहिए। आपके पॉइंट्स स्ट्रांग तो होने ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपके पॉइंट्स बहुत ज्यादा कन्विंसिंग होने चाहिए। कन्विंसिंग होंगे तो ऑफ कोर्स आपके पॉइंट्स अच्छे हो ही जाएंगे। देखो बहुत जरूरी है ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले अपने ओपोनेंट को या आपके अगेंस्ट में या आपके व्यू पॉइंट्स के जो फेवर में नहीं है, जो आपके ओपोज में है, उनको रिस्पेक्ट करना, उनको स्पेस देना। और द फर्स्ट क्वालिटी इन एनी ग्रुप डिस्कशन इज नॉट टू बी अ गुड स्पीकर but to be a good listener. Do you all agree with me? Those who agree, just give me a good hand raise. Those who agree with me, give me a hand raise. It is the most important part. हमको लगता है कि जितना हम ज्यादा बोलेंगे, जितना अपने आप को अच्छा दिखाएंगे, धांसू दिखाएंगे, बस मैंने ही बोला है, मैं ही जीत गया, मैं ही लड़ लिया, ऐसा नहीं होता है। ग्रुप डिस्कशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू बी अ गुड लिसनर than to be a good speaker. Once you listen, once you imbibe everything, जब आपने सबका सुन लिया, आपने मूवी में देखा होगा, मूवी में हम लोग या तो हम लोग कभी फ्रेंड्स के साथ भी बोलते हैं, बोल लिया तूने, हो गया तेरा, अब मैं बोलूं। इट्स लाइक दैट, बट यू कैनॉट बी दिस रूड। आप इतना रूडली बात नहीं कर सकते। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन अ ग्रुप डिस्कशन इज दैट यू हैव टू गिव स्पेस to the person who is speaking. You have to listen to them. You have to jot down points when they are speaking and keeping those points, उस points को ध्यान में रख के आपको फिर अपने पॉइंट्स को रखना है। और पॉइंट्स भी इतना सॉफ्टली और इतना इतना रिस्पेक्टफुली रखना है कि सामने वाला जो आपके अपोजिंग व्यूज रखता है वो भी आपके पॉइंट्स को अच्छे से समझे। नहीं तो क्या होगा पता है आपको, अगर आपको लगता है कि मैं एग्रेसिव होके बोलूंगा, आवाज ऊंची करके बोलूंगा, अपने चेयर चेयर से उठ के मैं खड़ा हो गया और मैं ऐसे पिंक फिंगर पॉइंट करके बात करूंगा, ऐसा कुछ भी लगता है तो दीज आर नॉट द पॉइंटर्स। इस तरीके से कोई ग्रुप डिस्कशन जीतता नहीं है। ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट ये दोनों अलग चीज है। डिबेट में आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आपको फॉर एंड अगेंस्ट बोलना है, जिसमें एक बंदा या एक टीम, एक फेवर वाला टीम या अपोज वाला टीम जीतता है और एक हारता है। बट ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक रख दिया जाता है, जिसके जो विचार है वो उसके हिसाब से उसको डिस्कस करता है। एंड अच्छे डिस्कशन वही होता है जहां पे हम सामने वालों को स्पेस दे, सामने वालों को रेस्पेक्ट दे। अगर आपने देखा होगा पिछले 10 मिनट से मैं सिर्फ स्पेस और रेस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज यही एक सबसे ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट्स या कोई भी ग्रुप डिस्कशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इसको भूल जाते हैं। और बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस आपने देखा होगा, देन इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग एल्स, कुछ और हो जाता है, कोई झगड़ा करने लगता है, कोई कुछ बोलने लगता है, किसी का दिमाग खराब हो जाता है। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है आपके पॉइंट्स को आप अपने अपने अंदर, आपके जो पॉइंट्स है वो बाकी सब लोगों के पॉइंट्स को सुन के आप अपने पॉइंट्स को प्रॉपरली प्रेजेंट कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप डिस्कशन में आपका सामने वाले को स्पेस देना, सामने वाले को रेस्पेक्ट देना, उसके व्यूज को रेस्पेक्ट करना, और कभी भी आंखों से, वर्ड से या एक्शन से ऐसे रिएक्ट नहीं करना
जिससे आके आप अरे यार ये तू क्या बोल रहा है, तो बकवास है, फालतू, ऐसा सब नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कहाँ होता है। नो, यू हैव टू रेस्पेक्ट द पॉइंट दैट ही और शेयर। एंड अगर आपको उसकी बात काटनी है तो आप काट सकते हो, बट काटोगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट है आपके आपके दमदार पॉइंट्स, योर पॉइंट्स शुड बी द वंस वेयर ही हिमसेल्फ, आपके सामने वाला खुद बोलेगा अरे हाँ यार ये बात तो सही है। ठीक है, अगर आपने क्रिकेट फॉलो करते हो तो क्रिकेट में देखा होगा कि बॉलर्स बहुत टाइम बैट्समैन को बहुत कुछ बोल जाते हैं। द बेस्ट वे टू आंसर इज नॉट टू से the same thing to the bowler. The best way to answer is let the bat speak. Very important. So if you see, Sachin Tendulkar was known for this. When Sachin Tendulkar used to get sledged, जब सचिन तेंदुलकर को कुछ बड़ा बुरा बोलते थे तो कभी भी सामने नहीं बोलता था, वो नेक्स्ट बॉल 4 या 6 मारता था। दैट्स द बेस्ट रिप्लाई। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज स्पीक pleasantly, speak softly, and speak in the end, and make sure when you have a group discussion your point should be heard by everybody, and not only आपके पॉइंट्स को लोगों को सुनना है, आपको इतने अच्छे से बोलना है, इतने प्यार से आपको मक्खन बटर लगा के बोलना है कि आपको आपके पॉइंट्स को सब लोग कन्विंसिंगली मान जाए। ठीक है, अब हमारे पास कुछ टॉपिक्स है, आई डिस्कस द टॉपिक्स। आई हैव अ टॉपिक हियर, द रियलिटी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। करेक्ट, द द रियलिटी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, अभी एक मेरे दोस्त ने शूज मंगवाए। जब शूज मंगवाए तो 3500 के शूज आए, और आप लोग नहीं मानोगे ये फैक्ट है, ये अभी बड़ौदा में अभी हुआ कुछ टाइम पहले। जब शूज आए, पता नहीं उसने क्या ऑर्डर किया, कहाँ से ऑर्डर किया, मुझे पता है कंपनी का नाम, बट मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। एंड शूज ऑर्डर કર્યા તો 3500 રૂપિયાના શૂઝ ઓર્ડર કરી દીધા, પેમેન્ટ કરી દીધું ઓનલાઈન, ગૂગલ पे થી પેમેન્ટ થઈ ગયું, પૈસા કપાણા, सब एवरीथिंग वाज डन। एंड देन जब शूज आया एक हफ्ते बाद, आप नहीं मानोगे इतने इतने शूज आए, एंड ही इज माय एज, ही इज 35 years old, इतने इतने शूज आए। Can you imagine? And then something has must have gone wrong. And then he told me, John यार इतने इतने शूज है, मैं करूं क्या? मैं बोला एक काम कर, एक शू मेरे को दे दे, एक शू तू ले ले, हम दोनों इसका किचन बना देते हैं। So the reality of online shopping in India, many people have ordered Apple iPhones and they've actually gotten a real Apple with that too एक bite लिया हुआ, right? So the reality of online shopping, what is the reality of online shopping? Is it safe? What can we do uh, as a buyer, as a consumer, as a customer, as a client? नंदू क्या कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, हमको क्या क्या हाँ है ऑप्शंस अवेलेबल है। बहुत करियर सारे मारा सिटीज में ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ये चीज भी हमको एक बार देखना पड़ेगा। इसमें आपको अगेन बराबर डिस्कस करना पड़ेगा कि ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स आ गए हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना भी आ गया है। द वर्ल्ड इज वन, दुनिया एक है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी भी कोने से आप सामान मंगवा सकते हो। एंड इसके प्लस एंड हर चीज का एक प्लस पॉइंट और हर चीज का एक माइनस पॉइंट होता है, राइट? देन दूसरा एक नया कल्चर जो आया है, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम एक अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरी वाइफ मॉर्गन एंड स्टैनली करके एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए काम करती है। इट इज एन अमेरिकन कंपनी एंड शी वर्क्स फ्रॉम होम। शी इज नीदर गोइंग टू द कंपनी नॉर शी इज गोइंग टू अमेरिका। ना वो अमेरिका में है, ना वो यहाँ पे जहाँ पे कंपनी उसकी ऑफिस है बड़ौदा में, वहां पे वो घर से शी इज वर्किंग वर्क फ्रॉम होम। सो क्या ये अच्छी बात है? बिकॉज मेरे 2 साल की बेटी है तो उसको भी देख पाती है, उसको भी संभाल पाती है, और मॉर्गन एंड स्टैनली नाम की कंपनी के लिए, अमेरिकन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए काम भी कर सकती है। क्या वर्क फ्रॉम होम एक अच्छा ट्रेंड हुआ है? और ये ट्रेंड क्या पहले था? क्या कोविड के बाद आया? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वर्क फ्रॉम होम अच्छा नहीं, बिकॉज वो शाम को 6 बजे 5 बजे भी मीटिंग रख देते हैं। ऑफिस का टाइम अच्छा है, 9 बजे ऑफिस जाओ, 5 बजे घर जाओ, डन, नेक्स्ट डे की नेक्स्ट डे। बट वर्क फ्रॉम होम जब से आया है तो रात को 10 बजे भी मीटिंग हो रहा है। ठीक है, सो वर्क फ्रॉम होम अच्छा है। लोग आलसी हो गए हैं, लोगों को छुट्टी नहीं मिल रहा, छुट्टी मिल रहा है तो भी लोग बोलते हैं वैसे भी वर्क फ्रॉम होम ही है ना, तो घर बैठे बैठे कर लो। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें भी। सो वर्क फ्रॉम होम और बून और बेन,
ઘરેથી કામ કરો, ઠીક છે, એ વરદાન છે કે નુકસાન છે? હવે જે કરે છે એને ખબર છે કે વરદાન છે કે નુકસાન છે. એમાં આપણે શું ફાયદો થાય છે કે ઘરે ઘરે બેઠા બેઠા આપણે જયારે કામ કરીએ છીએ તો એનો ફાયદો છે કે ના છે કે જે ઓફિસ કલ્ચર જે હોય છે, ઓફિસ બોન્ડિંગ જે હોય છે એ ખરેખર હવે ખલાસ થઈ ગયું છે. એટલે એ બી આપણને એ સમજવું જાણવું જરૂરી છે. ફાઇન. Then relevance of Gandhi in modern world. It's a very beautiful topic. I appreciate Akshay sir for selecting this topic. Relevance of Gandhi in the modern world. આજે ગાંધીજી હોત તો આઈ એમ શ્યોર ઇન્સ્ટાગ્રામમાં અને ફેસબુકમાં સૌથી વધારે ફોલોવર્સ એમના જ હોત, અને આજે એ બી બધી રીતે સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા હોત જે રીતે આપણે આજે યુવાનો સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે. સો what is Gandhi? I will not say who is Gandhi. What is Gandhi? Today's generation, many of you would not know what is Gandhi or who is Gandhi. Gandhi is not that he was here on earth, but when Gandhiji was assassinated, Albert Einstein, the one of the greatest of all time, Albert Einstein, when उन्होंने बोला कि अब इस दुनिया में कभी एक ऐसा आदमी जन्म नहीं लेगा. गांधी जी, अगर आप साबरमती आश्रम जाओगे तो वहां पे लिखा है, गांधी जी ने बोला है, माई लाइफ इज माई मैसेज. क्या हम ये बोल सकते हैं हमारा लाइफ ही हमारा संदेश है? क्या आप और मैं ये बोल सकते हैं? आप सोच के देखो. Relevance of Gandhi. Gandhi is a lifestyle. The way he lived, the way he saw people, the way he pursued everything that he wanted in life. उनको जिस तरह से चीजें चाहिए थी वो उन्होंने पाई. तो गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, गांधी एक जीवन शैली का नाम है, गांधी एक लाइफस्टाइल और एक फिलॉसफी का नाम है. इसलिए बहुत लोग गांधी को मिसइंटरप्रेट करते हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ. ये सब वो लोग बोलते हैं जो 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 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज to know what is Gandhi, to know who is Gandhi, you should feel the philosophy that he followed. He followed Lord Ram, he followed the Quran, he followed the Bible, he followed the Ramayana, he followed Krishna. So what he followed turned out to be his message. That is why Gandhi comes up with a message saying that my life is my message. The third topic, Akshay sir, am I going right? We're discussing 2 minutes, 3 minutes on every topic. Exactly, sir. Perfectly going. Right. Fourth topic, why do you think social networks are important in modern society? What is basically network? Network का मतलब क्या होता है? जहां पे भी आप अपने आप को अवेलेबल कर सकते हो हेल्प लेने के लिए और हेल्प देने के लिए, ये होता है नेटवर्क. नेटवर्क, मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, इसका कहने का मतलब अगर आपको भुज में कुछ काम है तो मेरे पास लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं. अगर आप अहमदाबाद जाओ तो मेरे पास ऐसे लोग हैं जो आपको, मैं उनको फोन करूंगा तो मुझे हेल्प कर सकते हैं. या आप जाओगे तो मेरा नाम ले लेना, आपको हेल्प हो जाएगा. आप मुंबई जाओ, मेरा नाम ले लेना, आपका हेल्प हो जाएगा. सो व्हाट इज नेटवर्क. नेटवर्क का मतलब होता है अपने आप को अवेलेबल रखना हेल्प करने के लिए और हेल्प देने के लिए. अब क्वेश्चन क्या है, તમને કેમ લાગે છે કે આધુનિક સમાજમાં સામાજિક નેટવર્ક મહત્વપૂર્ણ છે? યસ, વેરી इंपॉर्टेंट. मैन इज अ सोशल एनिमल. एरिस्टोटल करके एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर थे. उन्होंने क्या बोला? मैन इज अ सोशल एनिमल. ह्यूमन और मैन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. आज हमारा वर्ल्ड इंटरनेट से, इंटरनेट भी क्या है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क. आज इंटरनेट एक शक्ति ऐसी आ गई है जिससे हम सब एक साथ जुड़ रहे हैं. ये नेटवर्किंग ही तो है कि अक्षय सर ने मुझे बोला, भुज में बैठे बैठे, बड़ौदा में बैठे मुझे बोला कि सर आप एक सेशन ले सकते हो क्या ग्रुप डिस्कशन के लिए? तो ये नेटवर्क ही है. अगर वो बड़ौदा में किसी को नहीं जानते तो शायद बड़ौदा से आज कोई रिसोर्स पर्सन नहीं आ सकता था. तो इट्स ऑल नेटवर्क. और आज
अगर एक इंसान सक्सेसफुल होता है तो वो उसके नेटवर्किंग की वजह से होता है, और नेटवर्किंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट है उसका कम्युनिकेशन स्किल्स। घुमा फिरा के चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही आती है। आज जेफ बेजोस का बिजनेस है अमेजोन का, या कोई भी जो मैकडी का बिजनेस है या केएफसी का बिजनेस है, कोई भी जो चेन्स चलाते हैं, वो पूरा चेन किस पे चल रहा है? नेटवर्किंग पे चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज, अभी इलेक्शन में सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस वाले मेहनत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है, और छोटे मोटे पार्टी सब हैं, सब लोग अपना नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बिकॉज नेटवर्क एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उनको उनके रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई डू यू थिंक सोशल नेटवर्क्स आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज फर्स्ट, man is a social animal, and social networking is one of the most important tool, सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है आपका। सोसाइटी में अगर आपको जमे रहना है तो आपका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, और सोशल नेटवर्क अच्छा होने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बिहेवियर, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो ही सक्सेस का सबसे पहला स्टेप है फेलियर। एंड फेलियर जितने आपके होंगे उतने आपके एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप उस एक्सपीरियंस को नेटवर्क्स में कन्वर्ट करोगे, एंड जैसे आपका नेटवर्क एक बार फैल जाएगा देन सक्सेस इज एट योर डोर स्टेप। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सोशल नेटवर्किंग, बिकॉज आज के मॉडर्न सोसाइटी में एक फोन में पूरी दुनिया आ गई। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत जरूरी है कि आपके पास एक सोशल नेटवर्किंग, आपका खुद का एक ग्रुप हो, आपका खुद का एक सेटअप हो, जहां पे जब हर वक्त 24 आवर्स 7 डेज अ वीक आप अवेलेबल हो हेल्प रिसीव करने के लिए और हेल्प डिलीवर करने के लिए। सो हमको हेल्पफुल बनना भी है, या हम किसी को हेल्पफुल बन के हेल्प भी कर सकते हैं, या किसी से हेल्प ले सकते हैं, वो भी हमारा एक अवेलेबिलिटी होना चाहिए। Then let's come to the fifth topic. We are not serious about saving wildlife environment. અમે વન્ય જીવન પર્યાવરણને બચાવવા માટે ગંભીર નથી। मिक्स्ड ओपिनियन है मेरा, बिकॉज हम लोग काफी जगह से हम लोग गंभीर है और नहीं भी। अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करें, वर्ल्ड लेवल पे बात करें, तो यस देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी એવા સંસ્થાઓ છે જે આજે પ્રકૃતિને કે વન્ય જીવનને બચાવવા માટે એ લોકો ખૂબ જ કામ કરી રહ્યા છે। એ લોકો સક્ષમ છે, એ લોકો પાસે ફંડિંગ છે। જે રીતે આપણે હમણાં જ ખબર છે કે આપણા વડાપ્રધાન શ્રી હમણાં જ ઇન્ડિયામાં 8 ચીતા લઈ આવ્યા છે। સો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણને ખબર પડે કે એ 8 ચીતાને લઈને આપણે શું કરવાના અહીંયા। ઇટ ઇઝ બીકોઝ વી આર ટ્રાઇંગ ટુ ક્રિએટ એન ઇકોલોજી। એક ફૂડ ચેઇન ફરીથી આપણે બનાવવા માંગીએ છીએ। આહાર શૃંખલા જે છે એમાં આપણે બનાવવા માંગીએ છીએ કે જે રીતે એક સમય પર ઇન્ડિયામાંથી ચીતા બધા વિલુપ્ત થઈ ગયા, એ રીતે આપણે જે નુકસાન થયું એને ફરી એને કરવા માટે આપણે ગવર્મેન્ટ ચીતાને પાછા લઈ આવ્યા છે। सेम इज बीइंग डन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बचाने के लिए भी गवर्नमेंट लेवल पे बहुत कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम किधर है? पर्सनल लेवल पे। आज भी हम लोग बहुत सारा प्लास्टिक यूज करते हैं, आज भी हम लोग बहुत सारी चीजें पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं जो एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रॉब्लम कर सकती है। बट यस, एनजीओ जरा जरा जॉन सर, एनजीओ जॉन सर, જે એ सर પ્રોપરલી सर એ ફિલ્ડ પર કામ કરે છે। યસ અક્ષય સર। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। सेशन एब्सोल्युटली, बस 30 सेकेंड्स में खत्म हो जाएगा। आपको सेम विल लिंक पे रीजॉइन। क्लिक करके वापस ज्वाइन करना है। ओके ऑल ऑफ यू? ठीक है, एवरीथिंग गोइंग फाइन सर? यस, वेरी परफेक्टली। करेक्ट। देन we'll start with the sixth topic, when we rejoin।